Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your science teacher. As you know, we are discussing chapter number 6, that is how different kind of material react with one another. In that we are discussing physical and chemical properties and changes. In our previous lecture, we have discussed physical properties of a substance and physical change. What is physical property of a substance? Properties such as shape, size, color, and state of a substance are called its physical properties. Listen carefully. Properties such as shape, size, color, and state of a substance are called its physical properties. And what is physical change? A change in which a substance undergo a change in its physical property is called a physical change. A physical change is generally reversible. ओके, रिवर्सिबल का मतलब वो चेंज होके अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं. इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. मीन्स फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं. क्लियर हो गया? लेट अस स्टार्ट केमिकल चेंज. ओके, ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन. जानते ही होंगे आप लोग, लोहे में जंग लगना. ठीक है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक, उसी के एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं. इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन एरिया फॉर सम टाइम it acquires a film of brownish substance. This substance is called as rust. Clear? The process is called as rusting. Iron gates of park. पार्क में जो है गेट जो लगे होते हैं, आयरन गेट्स ऑफ पार्क आर farmland, iron benches kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in open area gets rusted. At home you must have seen shovels and spades getting rusted with when exposed to atmosphere for some time. Clear? मीन्स लोहे का कोई भी सामान यदि आप ओपन एरिया डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रखते हैं तो कुछ समय बाद उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है. ओके, इन किचन ए वेट आयरन पैन, that is tawa, often gets rusted if left in that state for some time. Rust is not iron. It is different from iron on which it gets deposited. Let us consider a few more changes where new substances are formed. चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं. Get a small piece of thin strip of ribbon of magnesium. मैग्नीशियम एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए. गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ
ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. Bring the tip near a candle flame. It burns with a brilliant white color. When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. Does the ash look like the magnesium ribbon? अब देखिए, जब जो है मैग्नीशियम जल गया है, अब जो है क्या हुआ, पाउडरी ऐश बन गया है। ठीक है, अब बताइए कि जो है ये पहले की तरह मैग्नीशियम का जो रिबन लिए थे उसी तरह दिख रहा है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम जैसे जानते हैं किसी भी चीज़ को जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा जलने के बाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखिए, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। स्टीयर द मिक्सचर aqueous solution well. Test the mixture with blue and red litmus paper. Does the mixture turn red litmus? Does the mixture turn the blue litmus red? On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution as we have discussed in previous chapter? Acidic solution and basic solution with the help of litmus paper. On dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be, as I told you, that is magnesium oxide. As you have already learnt in chapter 5 that I told you in our previous lecture, magnesium hydroxide is a base. Magnesium oxide is a new substance formed on burning of a magnesium ribbon. जो मैग्नीशियम रिबन हम लोग जलाए थे, ठीक है, वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया सब्सटेंस होता है। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मैग्नीशियम को जलाने से मैग्नीशियम चेंज हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जो कि एक नया सब्सटेंस है। क्लियर? मैग्नीशियम, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। डिजॉल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल और नीला थोथा इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास। कॉपर सल्फेट का, ठीक है, जो कि दिखने में नीले कलर का दिखता है, ठीक, आधा कप या आधा गिलास लीजिए। टम्बलर और बीकर में ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें जो है डाइल्यूट H2SO4 मिलाइए। टू द सॉल्यूशन यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल। उसमें से जो है कुछ जो है एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए और इन ए ग्लास बॉटल। ड्रॉप ए नेल ऑफ आर यूज सेविंग ब्लेड। अब उसमें जो है ये जो सेविंग करने वाला ब्लेड होता है, ठीक, एक छोटा टुकड़ा उसमें डालिए। इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन
wait for half an hour. So what you will observe? Observe the color of solution. Compare it with color of sample solution separately. मीन्स क्या करना है, ब्लू विट्रियल या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए आधा ग्लास, ठीक, उसमें कुछ बूंद जो है H2SO4 मिलाइए। अब इस सॉल्यूशन का कुछ पार्ट जो है अपने एक टेस्ट ट्यूब में या किसी ग्लास वाटर बॉटल में लीजिए। अब फिर जो बचा हुआ है बीकर या ग्लास में, उसमें क्या करना है, डालना है सेविंग ब्लेड, ठीक। और उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद जो है उसका कलर देखना है और कंपेयर करना है जो बीकर में रखा सॉल्यूशन है आज जो आप अलग से रखे हुए टेस्ट ट्यूब या ग्लास बॉटल में सॉल्यूशन रखे हुए हैं, किस कलर का दिख रहा है। ओके, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन? टेक आउट द nail of blade. Has it changed in any way? The change that you notice are due to reaction between copper sulfate and iron. तो जो भी आपका चेंज मिलेगा वो क्यों मिलता है? That is because of reaction between copper sulfate and iron. The change of color of solution from blue to green, ठीक, वो जो है चेंज किस कलर में हो जाएगा, नीला से हरा हो जाता है, ब्लू टू ग्रीन, इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, ए न्यू सब्सटेंस। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस। क्लियर? मीन्स जो अभी हम लोग लिए थे, क्या लिए थे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए, ठीक, उसमें कुछ बूंद जो है सल्फ्यूरिक एसिड डालें और इस सॉल्यूशन में से हम थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग रख लिए किसी टेस्ट ट्यूब में या ग्लास बॉटल में। अब फिर ये जो सॉल्यूशन बचा है इसमें क्या डालें, सेविंग ब्लेड। सेविंग ब्लेड डालने के बाद जो है आधे घंटे 1 घंटे बाद हम जब चेक करते हैं तो इसका कलर किस तरह का हो जाता है, नीला से हरा हो जाता है, ठीक, बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। क्लियर? अब ये जो है नया सब्सटेंस फार्म हो रहा है, आयरन सल्फेट, ठीक, तो इसीलिए जो है दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल चेंज। लेट अस टेक एन अनदर एग्जाम्पल। टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ वाइनेगार, सिरका जो जानते या खाते भी होंगे। टेक ए टीस्पून ऑफ वाइनेगार इन टेस्ट ट्यूब, ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, थोड़ा सा उसमें जो है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा मिलाइए। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड एंड see bubbles of gas coming out. Pass this gas through freshly prepared lime water. ठीक है, क्या करना है, सिरका लीजिए, सिरके में थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर मिलाइए, ठीक। अब जब उसमें जो है बेकिंग पाउडर मिलाएंगे तो उसमें जो है हिसिंग साउंड के साथ गैस निकलेगी, ठीक, बबल्स के साथ। अब इस गैस को कहाँ पास करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब लाइम वाटर से जब पास करेंगे तो क्या होगा, द चेंज इन टेस्ट ट्यूब कलर, ठीक, कलर चेंज होगा, क्या बनेगा, वाइनेगार जो कि होता है एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा बनाएंगे क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस, मीन्स नया सब्सटेंस बन रहा है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, क्या मिलेगा आपको,
चेंज हो के आपको क्या मिलेगा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेज थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। You will use this to know by of testing carbon dioxide. Clear? मीन्स नया सब्सटेंस फार्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस वन इज आल्सो ए केमिकल चेंज। क्लियर? अब कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए केमिकल चेंज, a change in which one or more new substances are formed is called as chemical change. A chemical change is also called chemical reaction. Chemical changes are very important in our life. All new substances are formed as a result of chemical change. For example, if a metal is to be extracted from iron ore, such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. A medicine is the end product of chain of chemical reactions. Useful new materials such as plastic and detergents are produced by chemical reactions. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. मीन्स जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके साथ ये सारी घटनाएं होती हैं, क्या क्या, हीट, light or any other radiation, ultraviolet for example, may be given off or absorbed, sound may be produced, ये सब केमिकल रिएक्शन के दौरान होते हैं. Sound may be produced, a change in smell may take place or a new smell may be given off, a color change may be take place, a gas may be formed. Clear? ये सारी चीज़ें होती हैं किसके दौरान, केमिकल चेंज के दौरान. ओके, वी विल डिस्कस रस्टिंग ऑफ आयरन इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.